Good morning friends, welcome to my channel and my name is Bharat Gupta. I hope you all are doing well. The topic of today's class is 17 different structures to attempt task 1 graph. Graph can be of any type, line graph, bar graph, pie chart, etc. But situation is that you should have data in the form of increasing sense. The meaning of increasing sense is, for example, जैसे किसी country में cars की sale increase हो रही है, फास्ट फूड ईटर्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. ऑल these structures will help to attempt this kind of data and I am sure these structures will help to make your task 1 even more impressive. So friends, without wasting time, let's start our class. Let's start our first structure. You can see a line graph representing sale of cars in Japan in 2007 and 2009. As you can see, the sale of cars in Japan was 25,000 in 2007 and it increased and became 52,000 in 2009. We will make our first structure using from and to. These two from and to are used in pair. हम इसे पेयर में यूज करते हैं. फ्रॉम टू, फ्रॉम और टू का पेयर बनता है. हम इसको चेंज नहीं कर सकेंगे. हम ये नहीं बोल पाएंगे फ्रॉम एंड टू आर फिक्स्ड बिकॉज दे आर यूज्ड इन पेयर्स. इन दिस केस आफ्टर फ्रॉम वी मेंशन इनिशियल वैल्यू और वी कैन मेंशन इनिशियल टाइम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड आफ्टर टू वी विल मेंशन final value or time. As you can see, our subject is sale of cars in Japan and in diagram I have not written any article the before sale, but here I have written article the before sale. What is the reason behind this? First of all, I will explain this. This is your main noun. This is your main noun and we have explained this sale with the help of this preposition and its object. हमने क्या किया, जो सेल है ये हमारा मेन नाउन है. इस सेल को हमने इस प्रेपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमें इसको एक्सप्लेन किया. सेल किस चीज की है? कार्स की सेल है. सो this is working as an adjective phrase. जो ये prepositional phrase है वो किसका काम करे? adjective phrase. adjective का क्या काम होता है? to add details in noun और pronoun. तो ये हमारा noun है तो इसमें ये क्या कर रहा है? details add कर रहा है. तो इसकी वजह से जो हमारा जो मेन नाउन है वो क्या हो गया है? वो एक स्पेसिफिक हो गया है, पर्टिकुलर हो गया है. सो दैट इज व्हाई वी हैव रिटन आर्टिकल द बिफोर सेल. इसके पीछे ये रीजन है. अब हम किसी भी नाउन को अगर एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेपोजिशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट, दैट नाउन बिकम स्पेसिफिक और पर्टिकुलर एंड दैट नाउन ऑलवेज टेक article the before that noun. This is the reason why I have written article the before sale. And after that I have written second form of verb increased. Why I have written? Because you can see we have data of past years 2007 and 2009. To represent past we use second form of verb and you can see after increased I have written a word that is significantly. This is an adverb. This is an adverb. The function of adverb is to add details into verb. इसका adverb का क्या काम होता है कि जो adverb होती है वो verb में क्या ऐड कर रही है? डिटेल्स ऐड कर रही है. हमने ये यहाँ पे क्यों मेंशन किया है? क्योंकि आप देखिए 25,000 से सेल कितनी होगी है? 52,000 इन 2009. तो सेल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है. जब अगर हम सिंपल इंक्रीज लिख देंगे तो सिंपल वो इंक्रीज के बारे में बताएगी, ये नहीं बताएगी सेल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है. हमें एक वर्ड चाहिए जो एक्सप्लेन करेगा कि सेल इंक्रीज्ड वेरी मच, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है. तो इसके लिए हमें एक एडवर्ब डालनी पड़ेगी सिग्निफिकेंटली. इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा. ये एडवर्ब इसमें क्या डिटेल्स ऐड कर रही है? इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली. सो दिस इज योर एडवर्ब. एंड नेक्स्ट अवर स्ट्रक्चर इज द सेल ऑफ कार्स इन जापान इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम. फ्रॉम के बाद मैंने आपको बताया था हम क्या मेंशन करेंगे? इनिशियल वैल्यू. फ्रॉम 25,000 इन 2007 to after 2 we will mention final value to
52,000 in 2009. This is your first structure. How you can write structure for a line graph if this kind of data comes in your exam. And we can make second structure like this. We can interchange the position of to and from. Firstly we can write to, and after that we can write from. But if you write to, then you will mention final value, and after from you will mention the initial value. In this way we can make our second structure. This is your second structure, the sale of cars in Japan. This is your subject, and in first structure I have written increased, and here I have changed the verb, that is hiked. This is second form of verb, and I have written another adverb which has same meaning as of significantly, considerably. इसका मीनिंग भी बिल्कुल सेम ही है significantly के जैसा, कि सेल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है. हाइक्ड, ये भी क्या है, एडवर्ब है. नाउ हाउ वी कैन मेंशन फिगर्स. टू के बाद हमने क्या मेंशन करना है, फाइनल वैल्यू. 2,000 in 2009 from 25,000 in 2007. This is your second structure. How we can represent data using to and from. We can make our structure with the help of by. After by we mention the difference between two values. Here you can see the sale of cars in 2007 was 25,000 and in 2009 it was 52,000. So there is a difference of 27,000 in 2009. मीन्स हम देख सकते हैं कि 27,000 का डिफरेंस है 2009 में. तो हम बाय की हेल्प से भी एक क्या स्ट्रक्चर बना सकते हैं. योर थर्ड स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस. द सेल ऑफ कार्स इन जापान. दिस इज योर सब्जेक्ट. एस्कालेटेड, इट्स मीनिंग इज ऑल्सो इंक्रीज. मैसिवली, मैसिवली मीन्स बहुत ज्यादा. इट इज ऑल्सो एन एडवर्ब. By, I have told you earlier that after by we mention the difference between two values. The difference between two values is 27,000. By 27,000 in 2009. देखिए डिफरेंस कहाँ है, 27,000 का डिफरेंस है कहाँ, 2009 में. From 25,000 in 2007. हम ऐसे ही स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या, कि जो सेल ऑफ कार्स इन जापान एस्कालेटेड मैसिवली, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई. कैसे, बाय 27,000 in 2009. कैसे, डिफरेंस में 27,000 के डिफरेंस से 2009 में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई, और फ्रॉम 25,000 in 2007. दिस इज योर थर्ड स्ट्रक्चर. द फॉर्मेट ऑफ our fourth structure will be like this. The sale of cars in Japan. This is your subject. Witnessed. Witnessed what? We need a noun. Witnessed ने क्या देखा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखा है, तो हमें क्या चाहिए, नाउन. नाउन को लिख देंगे हम, जैसे यहाँ पे हमने वर्ब इंक्रीज यूज की है, ये वर्ब का भी काम करती है और नाउन का भी काम करती है, तो हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, इंक्रीज. द सेल ऑफ कार्स इन जापान विटनेस्ड इंक्रीज. पर हमने देखा है कि सिर्फ इंक्रीज नहीं, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक एडजेक्टिव चाहिए. तो एडजेक्टिव हम कैसे बनाएंगे, सिग्निफिकेंटली. सिग्निफिकेंटली को कन्वर्ट कर देंगे हम सिग्निफिकेंट में. किसमें, सिग्निफिकेंट में. और उसके पहले हम लगा देंगे आर्टिकल ए. आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, और जो एडजेक्टिव है वो किसके लिए आता है, नाउन के लिए. ठीक है जी. जो एडजेक्टिव है वो डिटेल्स ऐड करता है किसमें, नाउन में, और आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन में, नाउन के लिए. ठीक है जी. तो आपकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, द सेल ऑफ कार्स इन जापान विटनेस्ड आ सिग्निफिकेंट इंक्रीज. ये इसमें इंक्रीज कैसा इंक्रीज हुआ, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, तो एडजेक्टिव इसमें डिटेल्स ऐड कर रहा है इंक्रीज में कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, और आर्टिकल इस नाउन के लिए आया हुआ. दिस इज योर फोर्थ स्ट्रक्चर. हाउ वी कैन फ्रेम द सेल ऑफ कार्स इन जापान विटनेस्ड a significant increase. Now I will tell you how I have made this adjective from adverb. There is one concept in English. If we add ly into adjective, then it convert into adverb. If we remove ly from adverb, it converts into adjective. It's convert into adjective. But we have to be clear about the part of speech of that word. हमें उस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच के लिए क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है. कई बार क्या हो जाता है कि जैसे नाउन है, नाउन में अगर हम ly ऐड करेंगे
तो वो क्या बन जाता है, वो एडजेक्टिव, क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मंथ, मंथ इज नाउन, इफ वी add ly it converts into adjective monthly. For example, his monthly salary, this is your noun, this is your adjective, this is your possessive adjective. So this is the difference. You have to be careful about the part of speech of that word. If that word is adjective, if you add ly, that word convert in adverb. If you remove ly from adverb, that word convert in adjective. And if you add ly in noun, it changes in adjective. Same concept is here. Significantly is adverb, and I remove ly and it convert in adjective. So here in this example, in fourth example, you can see increase is noun and significant is adjective. We have removed ly from significantly, and that and word significantly convert in adjective in our fourth example. आप देख सकते हो फर्स्ट एग्जाम्पल में significantly क्या था, adverb था, और मैंने इसको ly को रिमूव कर दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, adjective में। हमें पता है adjective noun से पहले आकर उसमें डिटेल्स को ऐड करता है, तो ये क्या काम कर रहा है यहाँ पे, adjective। noun क्या है, एक अपना इंक्रीज एक नाउन है और उसमें डिटेल्स ऐड कर रहा है। कौन सी डिटेल की, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। दिस इज द कंसेप्ट हाउ वी कैन आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, हाउ वी कैन यूज दीज काइंड ऑफ वर्ड्स इन आवर IELTS स्ट्रक्चर। वी विल मेक आवर फिफ्थ स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ देयर। देयर इज एन एडवर्ब which gives information about adverb of place. Second one is introductory word. It is also called as introductory word. It is used to give introduction of a noun. For example, adverb of place. He went there. He went there. He went where? There. So this is adverb of place. Second one is introductory word. There was a king in that village. There was a king in that village. यहाँ पे जो there word है वो किसकी इंट्रोडक्शन दे रहा है, किंग की इंट्रोडक्शन दे रहा है कि वहां पे एक विलेज में क्या था, किंग था। तो यहाँ पे क्या होगा, किंग का नाउन होगा। हम कुछ भी बोल सकते थे। There was a huge elephant in that village, तो हम एनिमल की इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। There was a बिग फोर्ट इन दैट विलेज, उस विलेज में एक बहुत बड़ा फोर्ट था, तो हम क्या उसकी भी का नाउन ही है। तो हम देयर की हेल्प से किसी भी नाउन की इंट्रोडक्शन दे सकते हैं इन अ सेंटेंस। हियर इट इज वर्किंग एज एन एडवर्ब, हियर इट इज वर्किंग एज एन इंट्रोडक्टरी वर्ड एंड गिविंग इंट्रोडक्शन ऑफ अ नाउन king. This is the difference. Now with the help of this word we will frame our fifth structure. I have told you earlier कि there के बाद हमें क्या मेंशन करना होता है, noun. There was noun. Noun से पहले क्या आएगा, adjective. मैंने parts of speech की वीडियो बनाई, उसमें मैंने बताया हुआ डिटेल में कि noun से पहले क्या आता है, adjective. Adjective के पहले क्या आएगा, article. Article किसके लिए आएगा, noun के लिए, और जो adjective है वो noun में क्या करेगा, डिटेल्स को ऐड करेगा। जैसे हमने सेकंड एग्जाम्पल में लिया था, the sale of cars in Japan hiked considerably. Hiked considerably. You can see hiked considerably. तो मैं considerably में को किस में चेंज करूंगा, adjective में, तो वो क्या बन जाएगा, considerable. Considerable. और hike एक verb का भी काम करती है, एक noun का भी काम करती है। तो इस यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, hike. There was a considerable hike. किस में आया hike, in the sale of cars in Japan in 2009, comma, amounting to 52,000, whereas इट वॉज, इट क्या है, एक प्रोनाउन है जो किसको रेफर करेगा, इसको,
द सेल ऑफ कार्स इन जापान। इस नाउन की रेपिटेशन को स्टॉप करने के लिए हमने क्या लगाया यहाँ पर प्रनाउन इट, वेयर एज इट वॉज 25,000 in 2007. This is your complete structure. I am again explaining this structure. There was a considerable hike. एक वहां पे बहुत ज्यादा हाइक हुआ था. हाइक किस में आया था? in the sale of cars in Japan in 2009. उनकी फिगर कितनी थी? 52,000. अब ये भी कर सकते हो, there was a considerable hike of 27,000 in the sale of cars in Japan in 2009 amounting to 52,000, whereas it was 25,000 in 2007. हमें 2007 की फिगर भी बतानी पड़ेगी, उसके लिए हमने क्या यूज किया? whereas का मतलब क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन दिखाना, कंपेयर कर रहे हो हम टू ईयर्स को कंपेयर कर रहे हैं. कंपैरिजन के टाइम हम क्या यूज किया? whereas. यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है. किस चीज का? कंजंक्शन का. whereas it was 25,000 in 2007. This is your complete structure with the help of there. आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? यहाँ पे डिफरेंस भी मेंशन कर सकते हो. There was a considerable hike of 27,000 किस में आया हाइक? in the sale of cars in Japan in 2009 amounting to 52,000, whereas it was 25,000 in 2007. I will make our sixth structure with the help of between and. This structure will remain same as like first and second structure. The change will be that in first structure we have used from and to. Instead of using from and to, we will use between and. ये structure first और second structure के जैसे ही होगी, बस change क्या आएगा? from और to की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? between and. This is the difference. This is the format of our sixth structure. The sale of cars in Japan rose. This is second form of verb. Exponentially. This is your adverb. इसका भी वही मीनिंग है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है सेल. Between 25,000 in 2007 and 52,000 in 2009. This is your sixth structure. If you have data like this, you can represent your data with the help of between and. I will make our seventh structure with the help of stood at. The sale of cars in Japan stood at 25,000 in 2007. जैसे मैंने क्या लिखा यहाँ पे? द सेल ऑफ कार्स इन जापान स्टूड एट 25,000 2007 में सेल ऑफ जो कार्स की सेल थी वो कितनी थी? 25,000 थी. हम अब स्टूड एट को पेयर करेंगे विद अदर वर्ड्स और विद फ्रेजेस टू मेंशन दी फाइनल वैल्यू दैट वाज 52,000 इन 2009. हम स्टूड एट के साथ कुछ यहाँ पे फ्रेजेस को क्या करेंगे? पेयर करेंगे. क्यों पेयर करेंगे? ताकि जो हमारी 2009 की वैल्यू है कार्स की वो हम उसको मेंशन कर सके. तो हम क्या क्या फ्रेजेस वहां पे ऐड कर सकते हैं वो देखिए. स्टूड एट के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं? इन कंपैरिजन टू और ऑफ. इधर यू कैन राइट इन कंपैरिजन टू और यू कैन राइट इन कंपैरिजन ऑफ. बोथ विल कन्वे द सेम मीनिंग. And after that you will mention your final value in comparison to or of 52,000 in 2009. तो उसके बाद आपने क्या किया? अपनी फाइनल वैल्यू मेंशन कर दी. वो फाइनल वैल्यू क्या थी? 52,000 थी. कब? in 2009. and you can use different phrases in place of in comparison to. Like you can write as compared to. This as compared to will convey the same meaning as of in comparison to or in comparison of. ये जो as compared to जो हमने फ्रेज लिखी है ये भी सेम ही मीनिंग देगी. किसके जैसा? in comparison to और of के जैसा. और आप क्या लिख सकते हैं? आप ये भी लिख सकते हो with a with.
वीजा विज, आप इसको वीजा विज नहीं बोलोगे, इसको आप बोलोगे वीजा वी, वीजा वी। ये भी किसके लिए यूज है? कंपैरिजन करने के लिए। यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं 2007 और 2009 का, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगी? वीजा वी, नॉट वीजा विस। और आप यहाँ पे और क्या लिख सकते हो? आप ये भी लिख सकते हो एज अगेंस्ट, एज अगेंस्ट। और आप फाइनल आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? एज अपोज्ड टू। सो आपकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी? द सेल ऑफ कार्स इन जापान स्टूड एट 25,000 in 2007 in comparison to or of 52,000 in 2009. Either you can write as compared to, vis-a-vis, as against, as opposed to. All these phrases will convey the same meaning. क्या meaning कि हम 2 years जो है 2007 और 2009 है, उनकी हम कार की जो सेल है उसका क्या करें? हम कंपैरिजन करें। दिस इज योर कंप्लीट स्ट्रक्चर, दिस इज योर 7th स्ट्रक्चर यूजिंग स्टूड एट। आई विल टेल यू द फॉर्मेट ऑफ आवर 8th स्ट्रक्चर यूजिंग एन एडवर्ब रिस्पेक्टिवली। आई हैव रिटन a sentence for you. The sale of cars in Japan was 25,000 and 52,000 in the year 2007 and 2009. ठीक है जी, 25,000 और 52,000 थी, कब थी? 2007 and 2009. But there is one mistake in this sentence. क्या है? हम यहाँ पे respectively वर्ड को मेंशन नहीं किया है। अगर आप respectively वर्ड को मेंशन नहीं करोगे तो क्या होगा? ये ऑटोमेटिकली 2007 में फिगर कितनी बन जाएगी? 52,000। और 2009 में कितनी बन जाएगी? 25,000। दिस विल बी रॉन्ग, दिस विल बी रॉन्ग। हमारी फिगर क्या है? 2007 में कितनी थी? 25,000 और 2009 में कितनी थी? 52,000। तो इनके ऑर्डर को ठीक करने के लिए हमें क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा? रिस्पेक्टिवली और रिस्पेक्टिव। और इधर यू कैन राइट कॉरेस्पॉन्डिंगली, आप रिस्पेक्टली की जगह पे कॉरेस्पॉन्डिंगली वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो अब क्या होगा? इस वर्ड के लिखने के बाद 2007 की फिगर क्या बन जाएगी? 25,000 एंड 52,000 फिगर कब की बन जाएगी? 2009 की। देखो, दिस इज द डिफरेंस। इफ यू डू नॉट राइट this word respectively और correspondingly, that will be considered a mistake। तो मिस्टेक क्या होगी? वो जो ईयर्स है 2 उनको ऑपोजिट वैल्यूज क्या हो जाएंगी? वो अलॉट हो जाएंगी। तो उनको ऑर्डर में रखने के लिए हमें ये वर्ड यूज करने पड़ेंगे, रिस्पेक्टिवली और कॉरेस्पॉन्डिंगली। इसका मतलब ऑर्डर में, ऑर्डर में क्या है? 25,000 कब थी सेल? 2007 में। और 52,000 सेल कब थी? 2009 में। तो रिस्पेक्टिवली ये काम करेगा उनको, उन वैल्यू को ऑर्डर देने के लिए। हम अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर किससे बनाएंगे? रिस्पेक्टिव से। रिस्पेक्टिवली क्या थी? एडवर्ब। और रिस्पेक्टिव क्या था? एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव है तो ये नाउन से पहले आएगा। हमने पार्ट ऑफ स्पीच में डिस्कस किया था कि एडजेक्टिव कब आता है? नाउन से पहले। तो हमारी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, देखिए। आवर 9th स्ट्रक्चर वुड बी लाइक दिस। द रिस्पेक्टिव फिगर्स, यहां पे हम प्लूरल वर्ड मेंशन करेंगे। फिगर्स, फिगर्स किसकी? फिगर्स ऑफ द सेल ऑफ कार्स इन जापान। तो ये फिगर्स किसकी हैं? जो सेल हुई थी कार्स की जापान में। कितनी थी? यहाँ पे सॉरी वॉज नहीं, यहाँ पे आएगा वर, क्योंकि हमने वहां पे क्या यूज किया है? प्लूरल वर्ड यूज किया है, फिगर्स। तो यहाँ पे भी क्या प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे? वर। द रिस्पेक्टिव फिगर्स ऑफ द सेल ऑफ कार्स इन जापान वर 25,000 and 50,000 in the year 2007 and 2009। तो देखिए हमने यहाँ पे हमें रिस्पेक्टिवली लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्या यूज कर दिया? रिस्पेक्टिव। तो रिस्पेक्टिव भी वही काम करेगा रिस्पेक्टिवली जैसा ही। ये 25,000 फिगर किसको लॉट होगी? ईयर 2007 को। और जो 50,000 फिगर है, सॉरी 52,000 जो फिगर है वो किसको अलॉट होगी? 2009 ईयर को। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज रिस्पेक्टिवली एंड रिस्पेक्टिव इन आवर सेंटेंस। हम अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे मोर बाय और मोर देन को यूज कर। दिस इज योर फाइनल स्ट्रक्चर। द सेल ऑफ कार्स इन जापान इन 2009 was more by 27,000 देन दैट ऑफ 2007। जैसे देखिए हमने क्या किया है,
2009 में जो हमारी सेल थी वो कारों की कितनी थी, 52,000 थी, जो कि 27,000 ज़्यादा थी 2007 के कंपैरिजन में। तो मैंने क्या किया, बाय के बाद हमने मेंशन किया, बाय के बाद हम डिफरेंस मेंशन करते हैं। 2009 में हमने क्या देखा, 27,000 का डिफरेंस था। इन 2009 वाज मोर बाय 27,000 देन दैट ऑफ 2007। दिस इज कंपैरिजन कंजंक्शन। ये कंपैरिजन कंजंक्शन होता है जो कि कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है। अगर आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगा, अगर आप यहाँ पे दैट को यूज नहीं करोगे तो योर स्ट्रक्चर विल बी रॉन्ग। दैट एक प्रोनाउन है, दैट एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जो दैट हमें किसके पास लेके जा रहा है, इसके पास, द सेल ऑफ कार्स इन जापान। ये एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन का क्या काम होता है, टू स्टॉप द रेपिटेशन। तो अब ये क्या बनेगी, द सेल ऑफ कार्स इन जापान इन 2009 वाज मोर बाय 27,000 देन द सेल ऑफ कार्स ऑफ 2007। तो ये बनेगी। क्या हमने याद रखना है कि यहाँ पे दैट को कभी भी स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप कर दोगे तो आपकी स्ट्रक्चर विल बी रॉन्ग, तो रॉन्ग हो जाएगी। अब हमारा पार्ट क्या रह गया है, हमने ये तो मेंशन कर दिया है कि 2009 में 27,000 क्या थी, ज़्यादा का सेल थी कार्स की, बट हमने 2007 की फिगर मेंशन नहीं किया है। तो हाउ कैन वी मेंशन द फिगर। नेक्स्ट यू कैन सी आई हैव यूज अ वर्ड कॉन्स्टिट्यूटिंग, कॉमा। कॉन्स्टिट्यूटिंग से पहले क्या यूज करेंगे हम, कॉमा, ठीक है जी। उसके बाद हम दोनों ईयर्स की, जैसे हमने पहले 2009 की बात की है तो हम पहले क्या मेंशन करेंगे, 2009 की फिगर। उसके बाद हमने क्या 2007, तो उसके बाद हम मेंशन करेंगे 2007 की फिगर। उसके बाद हम इधर यू कैन राइट रिस्पेक्टिवली और यू कैन राइट कॉरस्पॉन्डिंगली। दिस इज अ डिफरेंस। नाउ आई विल टेल यू हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटिंग की जगह पे क्या क्या कुछ चेंज कर सकते हैं। यू कैन राइट accounting for instead of constituting. This will also convey the same meaning as that of constituting. You can writing amounting to, emerging as, comprising of. उसके बाद आप अपने figures को mention कर सकते हो. This is the way we can mention figures in a sentence. Now I will make structure using more than. In this structure we use more by. In the next structure I will use more than. Your 11th structure will be like this. The sale of cars in Japan in 2009 was 27,000 more than that of 2007, accounting for 52,027, corresponding. This is the way you can frame your structure with the help of more by and more than. Now come to our 12th structure. I will make our 12th structure with the help of less by and then. This structure will be same as like that of 10th and 11th, but change will be less by and less than. As you can see, I have made 12th and 13th structure with the help of less by and less than. The sale of cars in Japan in 2007 was 27,000 less than that of 2009. तो देखिए 2007 में फिगर कितनी थी अपनी 25,000 और 2009 में कितने थे 52,000। तो दोनों में डिफरेंस कितना था 27,000 का। तो मैंने मेंशन किया कि 2007 में 27,000 कम थी कंपैरिजन ऑफ 2009, वाज 27,000 लेस देन दैट ऑफ 2009। उसके बाद हमने 2007 और 2009 की जो एक्चुअल फिगर थी वो मेंशन कर दिया यूजिंग कंप्राइजिंग 25,000 एंड 52,000। पहले हमने 2007 लिखा है तो 2007 की फिगर मेंशन कर दी, फिर उसके बाद 2009 लिखा तो उसके बाद हमने क्या मेंशन किया 52,000 जो कि 2009 की फिगर थी सेल की, एंड उसके बाद हमने वर्ड को ये रिस्पेक्टिवली। एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैंने बनाई है यूजिंग लेस बाय। The sale of cars in Japan in 2007 was less by 27,000 than that of 2009। तो मैंने क्या किया बाय के साथ, बाय के बाद मेंशन कर दिया हमने 2007 कम थी किसमें 2007 में, then that of 2009 amounting to 25,000 and 52,000 corresponding। I will start my next structure with year, means I will make year as a subject in a sentence. Our data was in 2007 the sale of cars was 25,000 and in 2009 it was 52,000. We can start this structure like this. The year 2009, the year 2009, comma. After this we can write, we will write a verb like witnessed,
saw, reported, registered and recorded. All these verbs need its object and object can be noun और pronoun. जो ये वर्ब्स हैं इनको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है प्रनाउन, तो हमें इसके बाद अब नाउन मेंशन करना पड़ेगा. नाउन से पहले क्या आता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले क्या आता है आर्टिकल. यू कैन सी आफ्टर ऑल दीज वर्ब यू कैन यूज एनी वन वर्ब, like you can use witnessed, saw, reported, registered, recorded. All these verbs convey same meaning. And after that I have written a noun, growth. Grow is verb and growth is noun. Before growth I have written adjective, massive, बहुत ज़्यादा increase हुआ, बहुत ज़्यादा growth हुई है 2009 में. An article for this noun. Massive is adjective and massively is an adverb. ऑफ के बाद मैंने क्या किया है डिफरेंस मेंशन किया है, कितने के डिफरेंस के साथ ग्रोथ हुई है 27,000 के डिफरेंस के साथ ग्रोथ हुई है. किसमें इन द सेल ऑफ कार्स इन जापान accounting for 52,000 whereas the sale was 25,000 in 2007. You can see this structure that I have started this structure with year 2009 में क्या हुआ ग्रोथ हुई है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है. बहुत ज़्यादा ग्रोथ के लिए मैंने ये लिखा है मैसिव ग्रोथ. ऑफ के बाद मैंने डिफरेंस मेंशन कर दिया कितने की ग्रोथ हुई है और किस में ग्रोथ आई है इन द सेल ऑफ कार्स इन जापान अकाउंटिंग फॉर 52,000. हमने 2009 की तो बता दिया, अब हमने वेयर एज कंजंक्शन लगा के जो 2007 की सेल है उसको भी मेंशन कर दिया हमने. वेयर एज द सेल वाज 25,000 इन 2007. इन दिस वे बाय कीपिंग जब बाय मेकिंग ईयर एज अ सब्जेक्ट वी कैन मेक स्ट्रक्चर. Our next structure will start from country. If in a data country is given, then you can make your structure or you can start your structure with the name of the country. For example, in this data Japan is given, so we can start this structure with Japan. Let's start this structure. This structure will remain same as of year. Instead of writing year we will write here name of the country, and the entire structure, the rest of the structure will remain same as like of a year structure. I am going to explain this structure. Japan noticed what? Japan noticed what? What का आंसर हम कैसे नाउन से दे रहे हैं. इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन होता है इंक्रीज होना. इंक्लाइन इज वर्ब एंड इंक्लिनेशन इज नाउन. इसके बाद नोटिस वर्ब के बाद हमें इसका ऑब्जेक्ट चाहिए. ऑब्जेक्ट कैन बी नाउन और प्रोनाउन. तो इंक्लिनेशन क्या बनेगा नाउन. नाउन के पहले हमने क्या मेंशन किया है एडजेक्टिव एक्सपोनेंशियल. इसके अंदर बहुत ज्यादा. जापान नोटिस्ड एन एक्सपोनेंशियल इंक्लिनेशन, ये आर्टिकल इस नाउन के लिए आ रहा है. ऑफ के बाद मेंशन मैंने किया कि 27,000 इन द ईयर 2009 में जापान ने क्या नोटिस किया बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन, बहुत ज्यादा इंक्रीज. कितने का इंक्रीज हुआ 27,000 का. एंड ब्रैकेट में मैंने 2009 की फिगर मेंशन कर दे 52,000. यू कैन ऑल्सो मेंशन फिगर लाइक दिस कॉमा वेयर एज द सेल वाज 25,000 इन 2007. इफ यू कंपेयर 14th and 15th structure you can see I have just made a change in subject. In 14th the subject was year and here the subject is Japan. This is the difference. Our next structure will be passive. Active sentences are those sentences in which subject who performs action is present. इसको हम doer भी बोलते हैं, जिसने action perform करना होता है वो present होता है. For example, he is playing football. कौन फुटबॉल खेल रहा है ही, तो एक्शन करने वाला कौन है ही है. और पैसिव में क्या होता है जब सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है वो मिसिंग हो, वो एब्सेंट हो, उसकी प्रेजेंस ना हो, तो हम क्या बनाते हैं पैसिव. पैसिव में क्या करते हैं ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब मेंशन करते हैं. और मेन वर्ब हमेशा जो पैसिव है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज होगी. ये हेल्पिंग वर्ब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगी. प्रेजेंट में इसे हम लगा देंगे, पास्ट में वॉज वर और फ्यूचर के लिए विल शैल. ठीक है जी. तो अब हम देखेंगे इस स्ट्रक्चर को हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस वॉज आवर फर्स्ट स्ट्रक्चर, एक्टिव स्ट्रक्चर. The sale of cars increased significantly. Increased is verb, significantly is adverb. From this sentence we can convert this sentence into passive form. Here is the way we can convert into passive. First of all, convert this adverb into adjective by removing ly, significant, and this verb will change in नाउन. इंक्रीज, इंक्रीज वर्ब का भी काम करती है और इंक्रीज नाउन का भी काम करती है. एंड बिफोर सिग्निफिकेंट
we will add article A. Article A for noun, significant will add details in noun. A significant increase. In passive structure we will use helping verb, and this data was of past, and the past verb will be was, and I have told you earlier that main verb will be of third form of verb. A significant increase was seen, witnessed, recorded, reported, registered. You can use any verb. A significant increase, यहाँ पे आप ये भी मेंशन कर सकते हो, of 27,000 was seen in the sale of cars in 2009 in Japan, amounting to 52,000, whereas the sale was 25,000 in 2007. दिस ईयर पैसिव स्ट्रक्चर. ये पैसिव स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. मैंने क्या किया, जो हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर थी द सेल ऑफ कार्स इंक्रीज्ड सिग्निफाई, हमारी एक्टिव स्ट्रक्चर थी. ये कौन सी थी हमारी एक्टिव. मैंने को पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया है, एडवर्ब को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, एडजेक्टिव में. किस में, एडजेक्टिव में. और जो हमारी वर्ब थी, वर्ब को मैंने क्या बना दिया, नाउन. अगर यहाँ पे कोई और वर्ब हो जैसे ग्रो, ग्रो वर्ब है, ग्रीव होती तो हम यहाँ पे क्या कर देते, ग्रोथ, अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ. मैंने आपको बताया था कि पैसिव में हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए. हमारा डेटा पास्ट का है तो हम यहाँ पे पास्ट की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वाज. एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज फिक्स्ड, वाज सीन. आप कोई भी वर्ब यूज कर सकते हो, रिकॉर्डेड, रिपोर्टेड, रजिस्टर्ड, एनी वर्ब. किसमें आया, अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ 27,000 वाज इन, वाज सीन, देखा गया. किसमें देखा गया, इन द सेल ऑफ कार्स इन 2009 in Japan, amounting to 52,000, whereas the sale was 25,000 in 2007. This is your passive structure. आप इसको ऐसे रिमेंबर कर सकते हो. एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप सिंपली क्या करो, एडवर्ब को किस में कन्वर्ट कर दो, एडजेक्टिव में, और वर्ब को नाउन में कन्वर्ट कर दो. उसके आगे क्या लगा दो, आर्टिकल. उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, एक आपकी क्या आएगी, मेन वर्ब. बाद में जो रहेगा वो आप सारा इसमें एक्सप्लेन कर दो. उसका डेटा जो भी वैल्यूज है उसको मेंशन कर सकते हो आप. दिस इज योर लास्ट स्ट्रक्चर. यू कैन सी द सेल ऑफ कार्स इन जापान, जो अपना सब्जेक्ट है, स्टूड एट 25,000 2007. हमने स्टूड एट की हेल्प से 2007 की तो फिगर मेंशन कर दिया हमने. सॉ, देखा, सॉ अपना नंबर, इट्स नंबर एस्केलेटिंग कंसीडरेबली. इट्स नंबर के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज करेंगे. उसने अपना नंबर देखा बढ़ते हुए बहुत ज़्यादा, इसकी ये सेंस बनेगी. सॉ इट्स नंबर एस्केलेटिंग कंसीडरेबली, और कहाँ पे पहुँच गई, टू 52,000 in 2008. This is your last structure. In the last, I would like to discuss how to mention time in different ways. For example, if we have data from 2004 to 2007, its duration would be of 3 years. अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 3 years की duration बनेगी. तो with the help of from to from between and we can mention time. And there is one way we can mention time. For example, over a period or span of 3 years. You can write time in this way. In bracket you will have to mention the time 2004 to 2007. Over a period or span of 3 years. In bracket you will mention the time 2004 to 2007. There is one another way. Over a 3-year span or period 2004 to 2007. जैसे देखिए मैंने यहाँ पे 3 years लिखा है और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 3 year. Why it is so? देखिए यहाँ पे जो years है ना वो क्या है, एक noun है. वो क्या है, एक noun है. तो ये 3 है, ये एक एडजेक्टिव है. वो क्या है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है. एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होगा, कभी भी प्लूरल नहीं होगा. आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो 3, ठीक है जी. और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या, स्पैन क्या है, नाउन है, और ये ईयर क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का. तो एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे, प्लूरल कभी भी नहीं होंगे. तो जैसे फॉर एग्जांपल आप आई हैव अ कार, आई हैव अ रेड कार,
ठीक है, तो आप ये नहीं बोलोगे आई हैव अ रेड्स कार, रेड्स कार विल बी रॉन्ग। तो एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं रहते, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। यहाँ पे ईयर क्या काम कर रहा है, नाउन का, नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, बट हियर यहाँ पे ईयर क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एडजेक्टिव सिंगुलर, ओवर अ 3 ईयर स्पैन और पीरियड, ब्रैकेट में आप मेंशन कर देंगे टाइम पीरियड 2004 to 2007।